Hello, Capricorn. Welcome to my reading. This reading is for your personal growth based on positive affirmations, based on manifestations. And at last, I'll see the guidance for you from the deck called Archangel Michael Oracle deck. So, let me tell you, this is a bi monthly reading from 1st of September to 15th of September. It's a bi monthly reading. You can watch it as a Capricorn sun sign, Capricorn moon sign, and Capricorn ascendant or rising sign. And because ascendant and rising sign has got the same meaning. So, this is how your reading will proceed. I'll pick up 3 manifestation cards first, then followed by the positive affirmation card, and at last, angelic guidance card. So let's see what the universe has in store for you. Take it as a positive guidance and enhance and better your life. It's for your own betterment. I'll pick up 3 cards from this deck. Card number 1, card number 2, card number 3. Okay, now I'll move on to the deck of positive affirmation. I'll pick up 3 cards from this deck. Card number 1, card number 2, and card number 3. Universe, please guide the Capricorn people in their respective lives, what they need to know in the form of manifestation, positive affirmation, and in the form of guidance. Please guide them. Okay. Let me start with the manifestation card. The first card says, leave the past behind you. It says, leave the past behind you. If you focus on the difficulties from the past, you are just bringing more difficult circumstances to you now. If you hold a grudge or blame someone for something in the past, that negative energy harms you, certainly. We all know negative energy harms us, पर फिर भी हम लोग करते हैं क्योंकि स्वभाव में रहता है. तो यही स्वभाव चेंज करना होगा आपको अगर आप बेटरमेंट चाहते हैं अपने लाइफ में, चाहे मन की बेटरमेंट हो, दिमाग की बेटरमेंट हो, सेहत का बेटरमेंट हो, ओवरऑल लाइफ का जनरल बेटरमेंट हो. तो नेगेटिव थॉट से आपको मुक्ति लेना पड़ेगा. गॉट इट? Because it can only harm you and it will harm you. But positive thoughts will certainly help you grow mentally, emotionally, spiritually. आपका सेहत ठीक रहेगा, हेल्थ ठीक रहेगा. Let it all go, no matter what it is. Do it for you and watch your life get better in every area. लिविंग द पास्ट बिहाइंड यू इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. पास्ट को पकड़ के मत चलिए. हो सकता है कोई कैप्रिकॉर्न आप लोग शायद ऐसा कर रहे हैं या आप लोग के जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है कि आप लोग पास्ट को लेके अभी भी बैठे हैं. किसी के साथ कोई रिजनमेंट हुआ हो, कोई नेगेटिव कुछ घटना घटी हो, आप लोग अभी भी उस घटना को, उस सिचुएशन को, उस थॉट को, उस फीलिंग्स एंड इमोशंस को लेके बैठे हैं जो कि नेगेटिव है. So you have to leave the past behind you. If you focus on the difficulties from the past, you are just bringing more difficult circumstances to you now. That is, now in the sense in your present.
वही चीज़ बार बार रिपीट होगा फिर आपके लाइफ में। अगर आप अपना थॉट्स चेंज नहीं करेंगे तो फिर मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? पॉजिटिव एफर्मेशन कीजिए कि मैं इस पास्ट से निकलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट पीस इन माई लाइफ। आई डोंट वॉन्ट सर्टन नेगेटिव सिचुएशंस और सर्कमस्टांसिस इन माई लाइफ। डू वी वॉन्ट दैट? सर्टनली नॉट। हम लोग सब प्यार चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं जीवन में। सो इफ़ यू होल्ड अ ग्रज और ब्लेम समवन फॉर समथिंग इन द पास्ट, जो पास्ट में हो गया, बीत चुका, उसे हो जाने, जाने दीजिए उसे। डोंट होल्ड ऑन टू दैट पास्ट, लीव इट बिहाइंड यू। आप आगे बढ़िए, नहीं तो एक जगह पीछे ही चलते रहेंगे, फिर एक जगह स्टैग्नेंट हो जाएंगे। ग्रोथ नहीं होगा फिर आपकी लाइफ में। ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, पास्ट को त्याग करना पड़ता है, तब जाके हम लोग आगे प्रेजेंट में और फ्यूचर में आगे बढ़ पाते हैं। सो इफ़ यू होल्ड अ ग्रज और ब्लेम समवन फॉर समथिंग इन द पास्ट, दैट नेगेटिव एनर्जी हार्म्स यू। लेट इट ऑल गो, लेट गो कीजिए। लेट गो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके मन की शांति के लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉरगिव कीजिए, अगर किसी और ने गलती किया हो तो उसे फॉरगिव कीजिए एंड गेट द पीस बैक, गेट अ पीसफुल लाइफ henceforth. Let it all go, no matter what it is. कुछ भी हो इशू, हम लोग के जीवन में बहुत तरीके का सिचुएशन होता है, इश्यूज होते हैं। रिलेशनशिप लेके हो सकता है, फैमिली लाइफ लेके हो सकता है, लव लाइफ लेके हो सकता है, एडुकेशन हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Isn't it? सब वैरी करेगा, कैप्रिकॉन टू कैप्रिकॉन वैरी करेगा, बिकॉज इट्स अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, सो इट विल डेफिनेटली वैरी फ्रॉम कैप्रिकॉन टू कैप्रिकॉन। सबका लाइफ स्टोरी, लाइफ फैक्ट्स एक जैसे नहीं होगा, तो जस्ट टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू। Hope you got it, Capricorn people. So let it all go, no matter what it is, whatever might be the case, whatever might be the situation, just let it go. Let go कीजिए. Do it for you and watch your life get better in every area. अपने लिए कीजिए, अपने मन के शांति के लिए कीजिए, अपने मन की खुशी के लिए कीजिए, सेहत के लिए कीजिए, और बेहतर सेहत के लिए कीजिए, क्योंकि जो मन का कंडीशन रहेगा वही असर सेहत पे पड़ता है हम लोगों का। बिकॉज इट्स ऑल एनर्जी, इट्स ऑल वाइब्रेशन स्प्रेडिंग अराउंड, स्प्रेडिंग विद इन अस, isn't it? So do it for you and watch your life get better in every area. तब देखिए हर एक फील्ड में, हर एक एरिया में आपका लाइफ कैसे बेटर होगा, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कैसे चेंजेस आएंगे for the better, for the good. Okay, moving on to the second card of manifestation. Happiness attracts everything you want. अभी मैंने कहा खुशी, आनंद, शांति, सब कुछ चाहिए जीवन में, हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस अट्रैक्ट एवरीथिंग यू वांट. हैप्पीनेस इज द वेरी सोर्स, फाउंडेशन. अगर आप हैप्पी हैं तो आपको सब कुछ मिल सकता है, क्योंकि आप दिल से खुश हैं, मन से खुश हैं, आप में वो खुशी वाली थॉट्स है, अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, आप में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, थॉट पैटर्न्स नहीं है. आप जो प्रोसेसिंग करते हैं थॉट्स का, वो पॉजिटिव वे में करते हैं, हैप्पी रह के करते हैं. यू फील द हैप्पीनेस विद इन यू. सिर्फ ऊपरी खुशी नहीं, सिर्फ हंसी दिखाने के लिए ऐसे स्माइल नहीं, अंदर से खुश रहना, तब जाके ऐसा मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है. द शॉर्टकट टू एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ इज़ टू बी एंड फील हैप्पी नाउ. सो बी हैप्पी, जैसा मैंने कहा, ऊपरी खुशी नहीं,
बी हैप्पी एंड फील हैप्पी, इसे महसूस कीजिए, हैप्पीनेस को महसूस कीजिए। बी हैप्पी, अंदर से, सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, अंदर से बी हैप्पी एंड फील दैट हैप्पीनेस विद इन यू। तभी जाके आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्योंकि अंदर जैसा रहता है बाहर भी हम लोग का जीवन वैसा ही होता है। इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज इनसाइड। It's the fastest way to bring money and anything else you want in your life. हैप्पी रहेंगे तो इससे पैसा भी आएगा और जो आप चाहते हैं सब कुछ आ सकता है। तो अपने आप को खुश रखिए, खुशी का अनुभव कीजिए हर एक पल। आदत बनाइए इसको। हम लोग बहुत चीज़ों का आदत बनाते हैं ना, कभी कभी बुरी आदत भी बन जाती है। तो इसको आदत बनाइए, हैप्पीनेस को अपना आदत बनाइए। Those feelings of happiness will radiate out and attract back to you all things that bring you happiness, which will not only include an abundance of money but everything else you want. जैसा मैंने कहा, इस हैप्पीनेस वाली फीलिंग से जो सही मायने में आपके अंदर है, आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। एवरीथिंग यू वांट from the universe or in your life. Moving on to the third card. Proclaim it to create it. Proclaim it to create it. Claim कीजिए. To speed up any manifestation, think, talk and write about your desire in the present tense only. जो आपको चाहिए, जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, डिज़ायर्स है, ड्रीम्स है, आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन वो होता है जो हम लोग डिज़ायर्स और ड्रीम्स से रियलिटी में लाते हैं। दैट इज़ नोन एज मैनिफेस्टेशन। मेरा यूट्यूब चैनल पे मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी वीडियोज़ है, पॉजिटिव एफर्मेशन के ऊपर भी वीडियोज़ है। डू वॉच दोज वीडियोज़, रेफर टू दोज वीडियोज़, टेक इट एज अ गाइडेंस। ये आपकी ज़िंदगी को और बेहतर करेगा। टेक इट एज अ गाइडेंस, एज अ पॉजिटिव गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। कुछ सीखिए, कुछ जानिए, नॉलेज गेन कीजिए ये इन सब बारे में, अगर आपको पता ना हो इन सब बारे में तो। सो डू वॉच माई वीडियोज़, रेफर टू देम एंड टेक द हेल्प फ्रॉम दोज वीडियोज़। सो प्रोक्लेम इट टू क्रिएट इट, टू स्पीड अप एनी मैनिफेस्टेशन। थिंक, टॉक, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में बात कीजिए, उसके बारे में लिखिए। मेंटेन अ डायरी, बिकॉज राइटिंग इज़ वेरी वेरी पावरफुल। सारा दिन वो थॉट चर्न कीजिए अपने अंदर, सोचिए उसके बारे में, बात कीजिए उसके बारे में, उसको लिखिए डायरी पे डेली बेसिस पे उसे रिपीट कीजिए। तब जाके वो आपके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में आएगा, वहाँ से एनर्जी रेडिएट करेगा, रेज रेडिएट करेगा एनर्जी का। आपका ऑरा उस टाइप का बन जाएगा, पॉजिटिव ऑरा बन जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली आप पॉजिटिव ही क्लेम करोगे, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन ही चाहोगे अपने लाइफ में, नेगेटिव नहीं चाहोगे। कोई नहीं चाहता है नेगेटिव। तो आपका जीवन भी पॉजिटिविटी से हरा भरा रहेगा, भरा हुआ रहेगा, भरपूर एकदम पॉजिटिव एनर्जी रहेगा। So there is no past or future for the law of attraction. So ये यहाँ पे भी पास्ट की बात आई, तो पास्ट के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पास्ट और फ्यूचर बोल के कुछ नहीं होता है। जो होता है प्रेजेंट होता है, सिर्फ नाउ, दिस मोमेंट, नाउ इज़ द मोमेंट। सो आज से, अभी से ये चेंज शुरू कर दीजिए अगर आप बेटरमेंट चाहते हैं अपने लाइफ में तो। If you proclaim it as existing now, the universe must get very busy very quickly. यूनिवर्स भी आपको उतने ही जल्दी से मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में इसको रियलिटी में ट्रांसफ़र करेगा, वास्तव में लाएगा। Okay, got it? Moving on to the card of positive affirmation. The first card says, I am energetic and full of life. Capricorn people, I am energetic and full of life.
Are you? If you are, it's very good. If you are not, you have to affirm it positively this way. This is what you need to say. If you're feeling, if you're lacking any kind of energetic abilities, एनर्जी कभी कभी कम लगता है दिमाग में, शरीर में, नेगेटिव एनर्जी हो तो हम लोग बहुत ड्रेन्ड हो जाते हैं। इसीलिए ये पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन का, पॉजिटिव एफर्मेशन का इतना इम्पोर्टेंस होता है हम लोगों के लाइफ में। सो पे हीड टू ऑल दीज मैसेजेस दैट यूनिवर्स इज गाइडिंग यू। So say it to yourself, I am energetic and full of life. Full of life, चंगा एकदम, एनर्जेटिक। तब देखिए आप कैसे पॉजिटिव फील करते हैं सारा दिन। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट यू विल फील दैट पॉजिटिविटी एंड एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस यू विल फील दैट। सिर्फ आपको सोचना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट दैट थॉट, यहाँ पे भी बोला गया प्रोक्लेम इट टू क्रिएट इट। सो यू हैव टू क्रिएट द थॉट फर्स्ट, तभी जाके वो मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में आएगा। मूविंग ऑन टू द सेकेंड कार्ड ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशन, से दिस टू योर सेल्फ, आई एम सराउंडेड बाई अबंडेंस। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ कमी लगे किसी चीज़ का, चाहे इंसान भी हो, पैसा हो, जॉब करियर हो, फैमिली लाइफ का कुछ इशू हो, कुछ भी अगर कमी लगे तो इतना बोलिए सिर्फ अपने आप को, अपना ऐसा थॉट क्रिएट कीजिए जिसमें आप बोलेंगे आई एम सराउंडेड बाई अबंडेंस। ये आप खुद को बोल रहे हैं और यूनिवर्स को भी बोल रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स इज़ अबंडेंट। आपको कौन देगा? यूनिवर्स ही देगा, चाहे जैसे भी दे, किसी के माध्यम से दे। मीडिएटर कोई भी बन सकता है, लेकिन दे रहा है कौन? यूनिवर्स दे रहा है। सोर्स कौन है? यूनिवर्स। सो से दिस टू योर सेल्फ, आई एम सराउंडेड बाई यूनिवर्स। ओके, say this to yourself, I am surrounded by abundance, because universe is abundant. Universe has abundant supply of anything and everything you want. यूनिवर्स के पास भरपूर है, कमी हम लोगों में है, हम लोगों के पास है। तो आप अगर कुछ मांगना चाहते हैं तो यूनिवर्स को ऐसे बोलिए। सबसे पहले अपने आप को बोलिए, आई एम सराउंडेड बाई अबंडेंस। दिस इज़ वॉट यू नीड टू अफर्म पॉजिटिवली। तब देखिए कैसे अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में भी हो जाएगा। फिर यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट और वॉट यू डिज़ायर फॉर, ऑब्वियसली इन अ पॉजिटिव वे, एफर्मेटिव वे। ये सब अपने एक डायरी मेंटेन करके इसको लिखिए। डेली बेसिस पे ये थॉट्स क्रिएट करके इसको रिपीट कीजिए बार बार, तब भी जाके मैनिफेस्टेशन पॉसिबल होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। थर्डली, इट इज़ सेड आई लव माई सेल्फ। अगर सेल्फ लव नाम का चीज़ आपके अंदर हैबिट में नहीं है, दूसरों से तो हम प्यार कर लेते हैं, लेकिन वो वाकई में क्या प्यार होता है? आप सोच के देखिए। जिसके पास खुद के पास प्यार ना हो तो वो दूसरों को भला प्यार कैसे देगा या देगी? कुछ चीज़ें, अगर कुछ चीज़ हम लोगों के पास ना हो तो हम वो चीज़ कैसे दे सकते हैं दूसरों को? तो ये भी वही है। लव योर सेल्फ, फिल योर सेल्फ विथ लव फर्स्ट। फिल योर सेल्फ विथ लव फर्स्ट, ओनली देन यू कैन लव अदर्स। सो say this to yourself if you feel unloved, unhealed. ऐसा कोई सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में है कैप्रिकॉर्न, तो say this to yourself, I love myself. सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, अंदर से मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ वैसे अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने फ्लॉस को एक्सेप्ट कीजिए, सुधारिए, वर्क हार्ड कीजिए अपने ऊपर। सिर्फ जिम जाके हार्ड वर्क करना नहीं होता है, खुद के ऊपर भी काम करना होता है। तब जाके आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, मेंटली इमोशनली ग्रो करेंगे, आपके लाइफ में फुलफिलमेंट आएगा।
Okay, so say this to yourself, write it down, say it repeatedly that I love myself. तब आपके जीवन में जो भी इंसान आएंगे वो भी लवफुली एनर्जी के साथ आएंगे, लवफुल एनर्जीज के साथ आएंगे, वो उसी टाइप का इंसान आपको मिलेगा. Okay, so now I'll move on to the Archangel Michael deck for the angelic guidance from the universe. Archangel Michael, please guide the Capricorn people. Please let them know what they need to know and what they need to do. Please guide the Capricorn people. Archangel Michael, universe, please guide the Capricorn people. Please guide the Capricorn people. Tell them what they need to know. What changes do they need to bring in their life, in their nature? Please let them know. Okay. Well, this is the card that has come out for you from the Archangel Michael Oracle deck. It says, deeper insights are at hand. Your overall plan is good, but the details need work. मैंने अभी कहा, अपने ऊपर काम करना पड़ता है. इंसाइटफुल होइए और इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को लेके बैठिए, अपने मन को शांत कीजिए. क्वाइटन योर माइंड, क्वाइटन द एनर्जीज. टर्बुलेंट फेज में मत रहिए. टर्बुलेंट एनर्जी से आप कुछ सोच नहीं पाएंगे सही तरीके से, क्योंकि सोचना इम्पॉर्टेंट है. सो डीपर इंसाइट्स ज़रूरी है. ज़्यादा और ज़्यादा इंसाइटफुल बनिए. देखिए ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ, किस वजह से हो रहा है, किन लोगों के लिए हो रहा है, उसके लिए मुझे क्या चेंजेस करना चाहिए, क्यों ये ऐसा सिचुएशन बार बार रिपीट हो रहा है मेरे लाइफ में. चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी फील्ड और एरिया हो, ये बोलिए अपने आप को. डीपर इंसाइट इज रिक्वायर्ड. Your overall plan is good, but the details need work. Overall plan तो अच्छा है, लेकिन बारीकियाँ बहुत ज़रूरी है. You know, details are needed. As per the guidance of the universe, universe ये बोल रहा है, Archangel Michael ये बोल रहा है in the form of guidance that detailed work is needed. Reflect before moving forward. रिफ्लेक्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड. रिफ्लेक्ट कीजिए, जैसा मैंने कहा, सोचिए थोड़ा, अपने आप को लेके बैठिए, अपने आप को वक्त दीजिए. हमेशा भागा दौड़ी में अपना जीवन मत बिताइए. इस जीवन का ऐसे कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई खुशी नहीं है उसमें. अंदरूनी खुशी ऐसे नहीं आ सकता है. शांति हो तभी अंदरूनी खुशी आ सकता है. शांति ना हो तो अंदरूनी खुशी, अंदरूनी आनंद कभी नहीं आ सकता. नेवर. तो इसीलिए अपने साथ बैठिए, थोड़ा और इंसाइटफुल होइए, इंट्रोस्पेक्टिव होइए, अपने थॉट्स को देखिए, एनालाइज कीजिए अपने जीवन के इवेंट्स को, रिफ्लेक्ट कीजिए बिफोर मूविंग फॉरवर्ड. ऐसे ही आगे बढ़ के कोई काम मत कर दीजिए, किसी को कुछ कह मत दीजिए. बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिए, कुछ काम करने से पहले थोड़ा रिफ्लेक्ट कर लीजिए. सो दिस इज़ व्हाट बीइंग आस्क्ड to you in the form of guidance by the universe, by the angels, by the archangels. विश्वास कीजिए यूनिवर्स के ऊपर. पहले खुद के ऊपर भरोसा कीजिए, फिर यूनिवर्स के ऊपर विश्वास कीजिए. ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स. Okay, so universe has guided you in many ways and forms. Please take this positive guidance and apply this in your life. Thank you so much, Capricorn people, for watching my video. Hope you liked it and enjoyed it. Wish you all the very best for your life in general, for your overall life.
Hope you will take this as a guidance and apply this in your life for your own betterment. So you can watch it as a Capricorn sun sign, Capricorn moon sign, and Capricorn rising sign or ascendant sign. So see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. God bless you.